to all of you. Now today we are going to study SP Secretarial Practice 12th Standard HSC Commerce. Okay, and we are going to study first lesson, chapter number 1 of SP, that is nothing but an introduction to corporate finance. And you know, syllabus is new, so obviously the lesson is also new, the whole structure is also new. So now we are going to already study everything regarding the concept of corporate finance, what is the meaning of corporate finance, and what is the use of corporate finance in our day-to-day lives. But today we are going to study the importance of corporate finance. What? We are going to study 1.2. Okay, importance of corporate finance. Now, what is the importance of corporate finance in day-to-day life for the company, for the corporation, for the industry? तो कॉर्पोरेट फाइनेंस का इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, बराबर, हर एक इंसान के लिए, हर एक कंपनी के लिए. सो इन द फंक्शनल मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, importance is given to production finance, then marketing and personal activities. Among all these activities, utmost importance is given to financial activities. The importance of corporate finance may be discussed as follows. Now, obviously, production activity, marketing activity, branding, okay, promotion activity, these are very important activities in a business or for a corporation, okay, for any ongoing or growing or prospering corporation. But beside that, the most important thing for any corporate, for any company, nothing but the corporate finance, or you may call it the financial activities of finance. Okay, I already told you in the first lecture or previous lecture that finance is the lifeblood of business. फाइनेंस के सिवा कंपनी चल ही नहीं सकती. बराबर, जैसे हमारे रगों में खून दौड़ता है, वो अगर रुक गया तो हम लोग क्या हो जाएंगे, वो जैसे एक चीज हमारा जो बॉडी का एक होते ना ऑर्गन, सो क्या हो जाएंगे, पैरालाइज हो जाएंगे. वैसे ही कंपनी के लिए फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉर्पोरेट फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. विदाउट कॉर्पोरेट फाइनेंस और विदाउट एनी फाइनेंशियल एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन, एनी कंपनी, नॉट जस्ट माय कंपनी, योर कंपनी, a small company, big company, doesn't matter, any company will be paralyzed. Will be paralyzed. उसके सिवा एक्टिविटी हो ही नहीं सकती. Finance is an oxygen to business or to any corporation, any company, whether small company, whether medium scale or small scale, medium scale or large scale. Okay. So, what is the importance of corporate finance in the day-to-day life of any company? Now, first one, helps in decision making. Helps in decision making. This is the first important. Helps in decision making. Any decision are taken into the view of purview of finance. So now, most of the important decisions of business enterprise are determined on the basis of availability of funds. If funds is available, then obviously we can do a lot of things. If funds is not available, then the shortage of fund, then obviously all the activities of the corporations or expansion activity, diversification activity or growth of any corporate company will be curtailed. वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी. वो कंपनी का जो भी डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा. तो इसके लिए फंड क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है. बराबर, कोई भी डिसीजन, कंपनी में कोई भी डिसीजन लेते हैं, समझो हमको ये कंपनी बढ़ाना है, हमको अलग अलग सेक्टर में जाना है, उसके लिए सबसे पहले कोई भी कंपनी के मैनेजर होते हैं, स्पेशली फाइनेंस मैनेजर होते हैं, हमेशा हर डिसीजन कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं लेते हैं. हम लोगों ने 11th में वही पढ़ा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एवरी डे बाय डिसीजन करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डू नॉट हैव द टाइम एट द डिस्पोजल टू लुक आफ्टर ईच एंड एवरी फंक्शन ऑफ द इवन द फाइनेंशियल एक्टिविटीज आल्सो. सो दे अपॉइंट फाइनेंस मैनेजर. उसके लिए फाइनेंस मैनेजर होती है और वो फाइनेंस मैनेजर पूरे कंपनी का काम देखते हैं, स्पेशली फाइनेंशियल एक्टिविटीज के ऊपर वो लोग ध्यान देते हैं. So, helps in decision making. Most of the important decisions of business enterprise are determined on the basis of availability of fund. अगर fund available है तो important decision ले पाएंगे, अगर fund available नहीं है या shortage of fund है तो decision नहीं ले पाएंगे. बराबर, there should be optimum what you call it availability of fund to take any financial decision regarding diversification, regarding expansion, regarding growth. Okay. It is difficult to perform any function of business enterprise independently without finance. So any decision, any corporation or any company, multinational corporation, transnational corporation, or even the domestic company or foreign company, they cannot take decision without taking into account the financial activities of the business or the availability of fund. This is very important.
भाई तो मतलब इट इज डिफिकल्ट टू परफॉर्म एनी फंक्शन। कोई भी काम करना है कंपनी को, समझो अलग अलग सेक्टर्स में जाना है, अलग अलग बिजनेस करना है, बराबर। जैसे रिलायंस को आपको मालूम है, रिलायंस इंडस्ट्रीज था, रिलायंस जियो, उन्होंने अलग डिवीजन शुरू किया। उसके लिए रिलायंस जियो तो सबको मालूम है 50,000 करोड़ कितना खर्चा किया है, 50,000 करोड़। तो उतना फंड अवेलेबल था क्या, ये पहले देखना पड़ता है। सो एनी फाइनेंशियल एक्टिविटी यू कैनॉट what you call it, indemnity without, means you cannot exclude the financial activity and then take decision. It is impossible. बराबर, फाइनेंशियल एक्टिविटीज को बाजू रखेंगे, फंड अवेलेबल है कि नहीं देखेंगे नहीं, और हम लोग डिसीजन लेके जाएंगे, मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, कोई भी कंपनी के लिए भी और कोई इंडिविजुअल के लिए भी। So that's why they said it is difficult to perform any function of business like enterprise independently without finance. बराबर, कि विदाउट फाइनेंस कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते, इसलिए फाइनेंशियल एक्टिविटीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दे आर द प्राइम मोस्ट इंपॉर्टेंट, you call them prime important or most important. Now every decision in the business is needed to be taken keeping in view of its impact on profitability. So कोई भी डिसीजन लेते समय प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर कुछ भी बुरा असर नहीं होना चाहिए। जैसे आपको तो आप अकाउंट्स के स्टूडेंट के, सब स्टूडेंट जो है अकाउंट्स तो पढ़ते हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट, तो ऑब्वियसली आपको मालूम रहेगा कि ग्रॉस प्रॉफिट रहता है, नेट प्रॉफिट रहता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा रहता है, नेट प्रॉफिट, है ना। अगर नेट प्रॉफिट कम हो गया या नेट प्रॉफिट के ऊपर बुरा असर हो गया, नेट लॉस आ गया, नेट प्रॉफिट के बदले क्या आ गया, नेट लॉस आ गया, तो कंपनी को जल्दी से ताला लग जाएगा। इसलिए मैंने कहा है ना, एवरी डिसीजन इन द बिजनेस, कोई भी डिसीजन हो बिजनेस में, इज नीडेड टू बी टेकन कीपिंग इन व्यू ऑफ इट्स इंपैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। कोई भी डिसीजन लेते समय बिजनेस के लिए या बिजनेस में, तो उसमें हमको ये देखना चाहिए कि हमारे प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर, हमारे नेट प्रॉफिट के ऊपर उसका कोई बुरा असर तो नहीं हो रहा है, प्रॉफिट रिड्यूस तो नहीं हो रहा है, प्रॉफिट नेट लॉस में कन्वर्ट तो नहीं हो रहा है। Okay. Now there may be number of alternatives, but the management is required to select the best one which will enhance profitability. So obviously, by taking decision, we have to choose. We, not we, but finance manager have to choose our best alternative. We have to choose best alternative by taking or making any kind of a financial decision. फाइनेंशियल डिसीजन लेते समय या कोई भी बिजनेस डिसीजन लेते समय फाइनेंस को पहले देखना पड़ता है, और उसमें बहुत सारे अल्टरनेटिव रहते हैं। मतलब कोई भी डिसीजन लेते समय कंपनी के सामने बहुत सारे अल्टरनेटिव रहते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, उसमें से बेस्ट ऑप्शन चुनो जिससे कंपनी का फायदा ही फायदा हो, बाकी कुछ नहीं। नाउ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन गिव ग्रीन सिग्नल टू द प्रोजेक्ट ओनली व्हेन इट इज फाइनेंशियली वायबल। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी कोई भी डायरेक्टर हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो या फाइनेंस मैनेजर हो, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जब वो लोग डिसीजन लेते हैं या डिसीजन को क्या बोलते हैं, वो लोग अप्रूवल देते हैं, तो वो लोग क्या देखते हैं, ग्रीन टू प्रोजेक्ट ओनली व्हेन इट इज फाइनेंशियली वायबल। फाइनेंशियली वायबल मींस फाइनेंशियली फिजिबल। फाइनेंशियली फिजिबल का मतलब कि उसमें कम पैसे की लागत लगेगी और फायदा ज्यादा होगा। कम पैसा हमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, फायदा ज्यादा होगा, या जितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसके दुगना हमको प्रॉफिट होना चाहिए, उसको बोलते हैं फाइनेंशियली वायबल। बराबर, कि फाइनेंस कम इस्तेमाल करके यू हैव टू कंजर्व द फाइनेंस, जैसे बोलते हैं कंजर्व द वाटर, पानी बचा के रखो, वैसे पैसा भी बचाना पड़ता है हर एक बिजनेस को। सो नाउ डज कॉर्पोरेट फाइनेंस प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इसलिए मैंने कहा था कि कॉर्पोरेट फाइनेंस प्ले सिग्निफिकेंट रोल, कॉर्पोरेट फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट और अहम भूमिका निभाता है इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कोई भी कंपनी का डिसीजन लेते समय। Now second one, you can see second one helps in raising capital for a project, helps in raising capital for a project। अभी आपको मालूम है प्रोजेक्ट तो कंपनी के चालू ही रहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्ट फाइनेंस। क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट फाइनेंस। Now we study whenever a business firm wants to start a new venture, it needs to raise capital। बराबर, अभी कोई भी कंपनी को कोई नया प्रोजेक्ट करना है, नई कई जगह कंपनी खोलनी है, फैक्ट्री खोलनी है, बराबर, तो ऑब्वियसली उसके लिए क्या है सबसे इम्पोर्टेंट, फाइनेंस। बराबर, तो कभी भी उनको क्या देखना पड़ता है, कैपिटल को देखना पड़ता है। फाइनेंस यानी क्या, कैपिटल एक तरह, तो कैपिटल किसी को कुछ भी नहीं हो सकता। बिजनेस फॉर कैपिटल फंड बाय इशूइंग शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स और इवन बाय टेकिंग लोन्स फ्रॉम द बैंक।
बिजनेस फर्म अपने जेब से तो कुछ डाल नहीं सकती। जैसे रिलायंस जियो, मालूम है आपको, रिलायंस जियो जब शुरू किया था तो 50,000 करोड़ का उनके पास ये प्रोजेक्ट था रिलायंस जियो का, जब वो स्टार्ट हुआ था। और 50,000 करोड़, और हमारे के पास पैसा तो बहुत था, लेकिन बोला मैं अपनी जेब से नहीं डालूं। तो उसने कहाँ से ये पैसा लाया? तो उसने क्या किया, इश्यू किए, शेयर इश्यू किए, डिबेंचर इश्यू किए, बॉन्ड इश्यू किए, और बहुत सारे बैंकों से लोन भी लिया। सो बिजनेस फर्म कैन रेज फंड, तो हमेशा अपने ही जेब से पैसा डालना चाहिए ऐसा नहीं है। फंड रेज करने के लिए, कैपिटल रेज करने के लिए, कैपिटल लाने के लिए, पैसा लाने के लिए हम लोग अलग अलग, यानी बिजनेसमैन की बात कर रहा हूँ कि कंपनी और बिजनेस को अलग अलग रास्ते हैं, अलग अलग अल्टरनेटिव है। कौन से हैं? देखो, इशूइंग शेयर, शेयर इशू करो, बराबर, उसके बाद डिबेंचर इशू करो, फिर बॉन्ड्स इशू करो, और यू कैन टेकिंग लोन फ्रॉम द बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन भी ले सकते हैं। तो ये सब अल्टरनेटिव है, हेल्प्स इन रेजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट। तो इसमें भी फाइनेंशियल डिसीजन है, बराबर। कोई भी किसी भी बैंक से लोन लेंगे तो चलेगा क्या? जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है, ऐसे बैंक से हम लोन नहीं लेंगे। जिनका रेट ऑफ इंटरेस्ट लो है, ऐसी बैंक से लोन लेंगे, बराबर। Now, third one helps in research and development, R&D. रिसर्च एंड डेवलपमेंट में नया प्रोडक्ट का इनोवेशन करने के लिए, इन्वेंशन करने के लिए, नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, बराबर, और नए प्रोडक्ट को खोजने के लिए हमको क्या चाहिए? फाइनेंस। तो फाइनेंस में क्या होता है? हेल्प्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कॉर्पोरेट फाइनेंस हेल्प्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बराबर। जैसे अभी 4G है, 4G के बाद क्या आ जाएगा? 5G के फोन आ जाएंगे। 5G के फोन क्या ऑटोमेटिकली आ जाएंगे? नहीं, हर एक कंपनी को उसके लिए बराबर अलग अलग फाइनेंशियल एक्टिविटीज, उसमें भी फाइनेंस को जमा करना पड़ेगा। तो क्या जमा करना पड़ेगा? फाइनेंस जमा करना पड़ेगा, तभी वो लोग R&D के लिए खर्चा करेंगे। क्योंकि फोन जब 5G आएगा तो ये 4G के फोन भी डब्बे में जाएंगे, बराबर। यानी सर्विस प्रोवाइडर, यानी जो सिम कार्ड देता है, उसको भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा बड़े पैमाने पर। और जो कंपनी जैसे सैमसंग है, नोकिया है, MI है, बहुत सारी कंपनी है, इन लोगों को भी क्या करना पड़ेगा? नए टाइप के फोन लाने पड़ेंगे, क्योंकि 5G बहुत फास्टेस्ट है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हेल्प्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नया नया रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी पैसा चाहिए। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस हेल्प करता है, क्या करता है? हेल्प करता है, मदद करता है, किसके लिए? रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट मस्ट बी अंडरटेकन फॉर द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, बराबर। अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्यों किया जाता है? क्यों करते हैं कंपनी वाले? बल्कि कंपनी का बिजनेस बढ़ना चाहिए, उसमें ग्रोथ होनी चाहिए, बराबर। कंपनी अलग अलग जगह खुलनी चाहिए, अलग अलग देशों में या देश के अलग अलग कोने में ये कंपनी जानी चाहिए, पहुंचनी चाहिए, उनके प्रोडक्ट पहुंचनी चाहिए, कंपनी का नाम फेमस होना चाहिए, बराबर। इसके लिए सब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उससे ही तो कंपनी को फायदा होता है। नाउ डिटेल्ड टेक्निकल वर्क इज एसेंशियल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट। अभी कोई भी प्रोजेक्ट, नया प्रोजेक्ट करने के लिए बराबर डिटेल्ड टेक्निकल वर्क किया जाता है। डिटेल्ड टेक्निकल वर्क यानी क्या? इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी लगेगी, इसके लिए टेक्निकल एक्सपर्ट्स को बुलाया जाएगा, बराबर। उस टेक्नोलॉजी है क्या अपने पास अवेलेबल, या मार्केट में है, देशों में है क्या, किसी देश के पास है क्या, अपने देश में है क्या? अगर वो अवेलेबल नहीं तो उसको डेवलप करने के लिए हमको R&D में कितना खर्चा करना पड़ेगा, उसके लिए कितना फंड लगेगा, कितना पैसा लगेगा, कितना फाइनेंस लगेगा, कितना कैपिटल लगेगा, ये सब इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना चाहिए। नाउ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज लेंथी प्रोसेस, इट इज नॉट ए शॉर्ट वन, इट इज अ लेंथी प्रोसेस, बहुत लंबे समय तक चलता है। 5G जो है उसके ऊपर 10 साल से रिसर्च चालू है, तभी 5G आ रहा है, आया भी नहीं है, आ रहा है। 10 साल से इसके ऊपर रिसर्च चालू है 5G के ऊपर। So that's why research and development is a lengthy process, and therefore funds have to be made available throughout the research work. तो जब तक ये रिसर्च चालू रहेगा, जब तक ये रिसर्च काम नहीं आता, तब तक पैसा खर्चा करना पड़ता है इसको, कंपनी को। फाइनेंस उसके लिए इम्पोर्टेंट। This would require continuous financial support. तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट काम करना, बड़े अलग अलग टेक्निकल एक्सपर्ट्स रहते हैं, साइंटिस्ट रहते हैं, बराबर, उनको इसमें इन्वॉल्व करना, वो लोग सब काम करेंगे, वो लोग पॉकेट में काम करेंगे नहीं, सो उनको अच्छा सैलरी देना पड़ेगा, बराबर। उनके लिए जो भी इक्विपमेंट्स है, टूल्स है, वो उनको देने पड़ेंगे, उनके लिए अलग एक रिसर्च लैब शुरू करना पड़ेगा। कितना खर्चा है, लाखों करोड़ों में खर्चा है। तो ऐसे में उनको फाइनेंस अनइंटरप्टेड मिलना चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट अनइंटरप्टेड, यानी कंटिन्यूअस उनको पैसा मिलना चाहिए, तभी वो
अच्छी तरह से रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर पाएंगे। नाउ मेनी अ टाइम company has to upgrade its old product or develop new product to attract the consumers, बराबर। अब कंपनी को अपग्रेड करना पड़ता है, बराबर। सो ऐसे अपग्रेड करेंगे, जैसे अभी देखो 2G था, 2G के बाद क्या आ गया, 3G आ गया, 3G था, 3G के बाद क्या आ गया, 4G आ गया, अब 4G भी जाएगा, बराबर। शायद अगले साल तक या इस साल के एंड में 5G आ जाएगा, बराबर। तो ऑब्वियसली हर एक कंपनी को सोचना पड़ता है ना कि भाई वो कंपनी 5G ला रही है तो उसके पहले मैं क्यों ना लाऊं, तो ये ऐसे आ जाएगा क्या नहीं, उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ता है, उसके लिए खर्चा करना पड़ता है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, कोई भी प्रोडक्ट को अपग्रेड करना पड़ता है, बराबर। ओल्ड प्रोडक्ट जैसे आजकल के जमाने में कोई भी 2G का 3G का फोन कोई भी यूज नहीं करता, बराबर। ज्यादा से ज्यादा लोग, बराबर, इंडिया जैसी कंट्री में भी ज्यादा से ज्यादा लोग किसका यूज करते हैं, 4G प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो समझो कोई भी कंपनी 2G प्रोडक्ट बेच रही है, 3G प्रोडक्ट बेच रही है, कोई खरीदेगा, ऑब्वियसली नहीं, उनका लॉस हो जाएगा। वैसे ही सो अप टू अपग्रेड द प्रोडक्ट और डेवलप न्यू प्रोडक्ट, या कोई नया प्रोडक्ट डेवलप करना है तो अट्रैक्ट द कंज्यूमर, उससे कंज्यूमर अट्रैक्ट हो जाते हैं, यदि नया प्रोडक्ट आया है, बराबर। अभी चाइनीज चीजें सबसे ज्यादा क्यों बेची जाती थी और इंडियन कंपनी की चीजें क्यों कम बेची जाती थी या नहीं बेची जाती थी, इसका कारण है क्योंकि चाइनीज जो कंपनीज है हमेशा कोई ना कोई नया प्रोडक्ट वो लोग लॉन्च करते थे, स्पेशली मोबाइल में या हम लोग बोलेंगे उसको टेलीकॉम सेक्टर में, बराबर। चाइनीज लोगों का ज्यादा से ज्यादा क्या था, शेयर था इंडिया में, 70% शेयर चाइनीज कंपनी का, फिर 10% 20% बाकी के फॉरेन कंपनी का, और इंडियन कंपनी का सिर्फ 5% शेयर। ये किसकी वजह से, क्योंकि नए नए प्रोडक्ट वो लोग लॉन्च करते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी वो लोग लॉन्च करते हैं और R&D के ऊपर खर्चा करते हैं। लेकिन इन सब चीजों के लिए क्या चाहिए, फाइनेंस, इन सब चीजों के लिए कैपिटल चाहिए। So many a time company has to upgrade its old product or develop new product to attract customer. For this company has to conduct survey, उसके लिए सर्वे करते हैं, बराबर। मार्केट एनालिसिस, मार्केट का एनालिसिस करते हैं और कंपनी वाले, which again requires financial support. तो इस सब चीजों के लिए financial support is essential. It is vital to make market survey as well as to make market analysis. Now, fourth point क्या है? Helps in smooth running of business firm. A smooth flow of corporate finance is needed so that salaries of employees are paid on time, loans are cleared on time, raw material is purchased whenever required, sales promotion of existing products is carried out smoothly, and new products can be launched effectively. Smooth flow of corporate finance. Corporate finance है, कंपनी का जो फाइनेंशियल कैपिटल है वो हमेशा अवेलेबल होना चाहिए, बराबर। 12 hours and 24/7, बराबर। कहीं भी फाइनेंशियल का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, फाइनेंशियल फ्रंट से कोई भी प्रॉब्लम कंपनी को फेस नहीं होना चाहिए। देखो, a smooth flow of corporate finance is needed so that salaries of employees are paid on time. कोई भी एम्प्लॉय जो कंपनी के लिए काम करता है वो चाहता है कि मुझे 5 तारीख तक सैलरी मिलना ही चाहिए, लेकिन उसके लिए फिर क्या चाहिए, फंड, फाइनेंस, and that's why smooth flow of finance is very essential, very vital to make payment to the employees. Now, loans are clear on time. कोई भी लोन है उसका EMI, कंपनी तो लोन देती है, आपको मालूम है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक से लोन देती है, सो ऑब्वियसली उसका EMI जैसे आप लोग भरते हैं वैसे वो लोग भी भरना पड़ता है, तो वो EMI टाइम पे बैंक को जाना चाहिए, उसके लिए भी फाइनेंस चाहिए। उसके बाद रॉ मटेरियल परचेस करना है, उसके लिए भी फाइनेंस चाहिए, पैसा चाहिए, वेरी रिक्वायर्ड। सेल्स प्रमोशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, सेल्स प्रमोशन है एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग इसको बोलते हैं, बराबर। कोई भी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजिंग करना है, ब्रांडिंग करना है, तो उसके लिए लाखों करोड़ों का खर्चा आता है। So it's carried out smoothly and new products can be launched effectively. समझे, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो कोई भी चीज हो, ओल्ड प्रोडक्ट को बेचना हो, न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करना हो, एडवर्टाइजिंग करना हो, एम्प्लॉयज का सैलरी देना हो, या क्या बोलते हैं उसको कि कोई भी रॉ मटेरियल परचेस करना हो, उसके लिए फाइनेंस सबसे जरूरी है। फाइनेंस इज वेरी वाइटल, फाइनेंस के सिवा काम नहीं हो सकता, इसके लिए स्मूथ फ्लो ऑफ फाइनेंस होनी चाहिए। यानी फाइनेंस जो है वो कंपनी में हमेशा होना चाहिए, बराबर। फाइनेंस के बिना कुछ नहीं हो सकता। जैसे ऑक्सीजन का लेवल तुम्हारा कम हो गया तो तुम क्या हो जाओगे, ऑब्वियसली मर जाओगे, बराबर, या तुमको वेंटिलेटर पे रखना पड़ेगा।
वैसे अगर कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई तो कंपनी कभी ना कभी उसको ताला लग जाएगा, आज न कल उसको ताला लग जाएगा। इसलिए फाइनेंशियल सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्मूथ ऑफ फाइनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी एक्टिविटी।